everyone, Gunjan Bhatia this side. This is my first video, and today in this video I am covering the very first chapter of our class 12th psychology, variations in psychology, and our today's topic is individual differences in human being, which is on page number 2. Okay, let's start. So the first topic in this book, the first topic, or you can say the first term, is individual differences. And according to its definition, it says that individual differences refers to the distinctiveness and variations among people's characteristics and behavior patterns. सिंपल लैंग्वेज में हम अगर कहें तो हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किसी और पर्सन से कैसे डिफरेंट है और कितने डिफरेंट है, एक दूसरे से वो कितना डिस्टिंग्विशेबल है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये इंसान दूसरे से डिफरेंट है और कितने वेरिएशंस में डिफरेंट है, मतलब कोई ज़्यादा है कोई कम है, कैसा है उसका मतलब रेंज कितनी है. सो इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं या जब हम बोलते हैं कि आपस में हम इंडिविजुअल की डिफरेंस देख रहे हैं तो उस डेफिनेशन को जो टर्म दिया जाता है उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये वर्ड कहाँ से आया? इंडिविजुअल प्लस डिफरेंसेस, इंडिविजुअल के डिफरेंसेस. How one individual is different from one another. Simple. Now the question arises that why one individual is different from another. It can be because there are different combination of traits. Simple. हर person में different traits होते हैं by birth, by default. No one can help it. Okay, so they vary in terms of their physical characteristics such as height, weight, strength, hair color, voice, eye color, etc. And they also vary in their psychological dimensions such as intelligence, creativity, problem solving. अब एक पर्सन अगर किसी और पर्सन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कितना इंटेलिजेंट है, किन एरियाज़ में इंटेलिजेंट है, क्यों इतना इंटेलिजेंस है, इन सब अलग अलग चीज़ों को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, सो अपनी इसी टॉपिक के अंदर जो सेकंड टर्म है वो है सिचुएशनिज्म. नाउ अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चर्स, theorists and psychologists, they say that our behavior is influenced by the circumstances and situations around us. The word situationism is very simple. According to any situation, which means according to any situation. Now they say situation defines our behavior. As I told you earlier, that our behavior is influenced by our situation. Now that situation might be external or internal, doesn't matter. Every individual acts differently from one another on any or every situation. Okay, so to understand this term, just look at the pictures I have given. The first picture, in which there is a happy boss. Look at his face, how cheerful he is, because there is no stress. He is taking an interview of the newcomer, whereas the same person is seen very aggressive in the second picture, because there can be any situation. Okay, maybe there is some conflicts between the client, maybe there is something which is going out of the deadline. Okay, any situation can be there. So this is very simple or self-explanatory word, situationism. Okay, so next is the second topic of our chapter, assessment of psychological attributes. Okay, what is assessment? The very first thing which just came in mind, it is steps to understand the psychological attribute. Okay, हमने ये तो पढ़ लिया. But what is the meaning of psychological attribute? Psychological attributes means
द डिफरेंट फंक्शनिंग एरियाज। अब एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट में किन किन चीज़ों के साथ रह रहा है, इट माइट बी सोशल, योर सोसाइटी, इमोशंस एंड कॉग्निटिव, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, एनीथिंग। तो जब हम इन सारे फैक्टर्स का, इन सारी एरियाज़ का जब हम टेस्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उन्हें बोला जाता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ योर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब देखिए, हमने असेसमेंट इतना वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बट असेसमेंट का मतलब क्या होता है? सो द मेजरमेंट ऑफ योर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स of individual and their evaluation using multiple methods in terms of certain standards of comparison। तो जब हम किसी भी इंडिविजुअल का कोई टेस्ट लेते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, कैसे? बहुत सारे टेस्ट के थ्रू। जब हम उन टेस्ट में कंपैरिजन करते हैं कि ओके, हमने दो जनों का टेस्ट लिया है, इस पर्सन के 90 है, दूसरे पर्सन के 70 है, 20% का डिफरेंस है, ओके, तो ये इससे इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा इतना वीक है। तो हमने क्या किया, किसी भी इंडिविजुअल का टेस्ट लिया उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर, और फिर उनको कंपेयर किया उनके मेजरमेंट्स और इवैल्यूएशन के बेसिस पे। देन नेक्स्ट इज दैट कंपैरिजन मस्ट बी डन ऑन द साइंटिफिक मेथड्स। ओके, so this comparison that we are doing, it must be on the scientific method। हम ऐसे नहीं कर सकते कि बेटा हमने दो को पहेली दे दी, दोनों बच्चे सॉल्व करके दिखाओ, जिसने पहले कर ली वो ज़्यादा इंटेलिजेंट। नो, ये मेथड नहीं होता। ये जो मेथड्स है, ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी, जो कि हम चैप्टर में बाद में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज सिस्टमैटिक टेस्टिंग। जैसा मैंने अभी कहा कि ये फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दैट इट शुड बी सिस्टमैटिक टू इवैल्यूएट एबिलिटीज, बिहेवियर एंड पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी पर्सन की एबिलिटीज़, बिहेवियर्स या पर्सनल क्वालिटीज़ को असेस करने के लिए हमें हमेशा सिस्टमैटिक रहना चाहिए और साइंटिफिक रहना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक इज सम domains of psychological attributes। domains और areas are the same word। तो क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, एरियाज होते हैं? फर्स्ट इज इंटेलिजेंस, सेकेंड इज योर एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड पर्सनैलिटी। इंटेलिजेंस क्या होती है? इट इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। आपस में जो हम कहते हैं कॉमन सेंस, किसी भी पर्सन की एक ऐसी कॉमन सेंस जो उसे हेल्प करे वर्ल्ड को समझने में, थिंक रैशनली मीन्स लॉजिकल सोचने में, एंड यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली। और जितनी भी चीज़ें उसने सीखी हैं, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके आसपास की चीज़ें, उसे कैसे यूज़ करना है जब भी कोई चैलेंज आए लाइफ में। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज इंटेलिजेंस। Now next is aptitude। Aptitude is refers to an individual's underlying potential for acquiring skills। Now अगर अब हम बोले कि किसी बच्चे को कथक करना बहुत पसंद है, now पसंद होना अलग चीज़ है, बट क्या उसमें कथक करने के लिए वो समझ है, मतलब वो चीज़ वो क्या वो कर सकता है, क्या वो उसके लिए एलिजिबल है? तो फॉर एलिजिबलिंग फॉर समथिंग इज व्हाट इज कॉल्ड योर एप्टीट्यूड। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर का जो पोटेंशियल है किसी भी स्किल को एक्वायर करने का, दैट इज़ योर एप्टीट्यूड। जैसे अभी मैंने आपको कथक वाला एग्जांपल दिया, सेम गोज फॉर इंटरेस्ट, कि उस बच्चे को इंटरेस्ट है, आप क्या किस किस चीज़ में आपको शौक रखते हो, दैट इज़ व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट। एन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ रिलेटिव टू अदर। आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में एंगेज होना पसंद करते हो इज़ योर इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज वैल्यूज़, दैट आर एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। वेरी सिंपल, किसी भी चीज़ को लेके आपके मन में कैसी श्रद्धा है या आप क्या बिलीव रखते हो उस चीज़ के बारे में, इज़ योर
values, and the personality, the last one is relatively enduring characteristics of a person that makes him or her different from others. आप में क्या क्या खूबियाँ हैं, आप क्या क्या जानते हो, how you looks, how you stand, how you behave, all these factors makes your personality. ओके अब हमने ये भी पढ़ लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, सिचुएशनिज्म क्या होती है, असेसमेंट क्या होता है, और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के एरियाज क्या होते हैं. अब हम असेसमेंट करें कैसे, असेसमेंट मेथड्स क्या होने चाहिए हमारे किसी भी चीज़ को असेस करने के. तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट. साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? It's an objective and standardized measure of an individual's mental and behavior characteristics. ओके इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव है और स्टैंडर्डाइज्ड है उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए. नाउ इसका पर्पस क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर पर्सनल सिलेक्शन एज एन interview. It is used in placement or clinical diagnosis. These are also known as psychometrics. Psychological tests are also known as psychometrics. These are used to quantify psychophysical behaviors, abilities to make decision for future treatment if there is any. तो अगर कोई भी बोलता है कि मैं ऐसा ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई नीड ट्रीटमेंट, तो if that person needs treatment or not, we will do psychological test, and which type of psychological test, it will based on the symptoms the client is facing. Next is interview. Second method is interview. Okay, ये method तो हम सभी जानते हैं. What is interview? Let's see. So interview is seeking information from a person on one-to-one basis. अब ये क्या हो रहा है? As picture shown, एक जना बैठा हुआ है, दूसरा आंसर कर रहा है. Now it can be about anything. Okay, so ये one-to-one basis पे हम easily कर सकते हैं किसी से भी उसकी direct information जानने के लिए. It can be formal और informal. Formal means जब हम systematic way में पूछते हैं, हमने सारे questions लिखे हुए होते हैं, उन्हें number wise पूछते हैं. जिस सीरीज़ में, जिस ऑर्डर में हमने उसको रखा हुआ है, पहले क्या पूछना है, फिर क्या पूछना है, उसके बाद क्या पूछना है, दैट इज़ फॉर्मल इंटरव्यू. और इनफॉर्मल जैसे हम रोज़ टीवी में देखते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर दिया, उसमें से सेकंड क्वेश्चन निकल आया तो हमने वो पूछ लिया. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्क्रिप्टेड क्वेश्चन है हमने वही पूछनी है, दैट इज़ इनफॉर्मल इंटरव्यू. ओके, थर्ड पॉइंट इज़ इंटरव्यूज़ आर सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक. ना अगर अब हम सामने किसी से बैठ के बात कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि बंदा आपके सामने करके बहुत सारी चीज़ें घुमा जाए. तो ये सेल्फ रिपोर्टिंग, या बोलो तो जो भी क्लाइंट है वो आपको खुद रिपोर्ट करता है, खुद आंसर करता है अपने बारे में. ओके, नाउ द थर्ड इज केस स्टडी. केस स्टडी मीन्स किसी भी केस की स्टडी. नाउ द थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट दीज स्टडीज आर इन डेप्थ स्टडीज. इट इज़ इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल. Second, it allows researchers, psychologists to retain the meaningful characteristics of real life event. Means क्या हो रहा है पर्सन की लाइफ में, किसी की भी पर्सन की लाइफ में वो क्यों हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, उस चीज़ की क्या हिस्ट्री रही है, इसके क्या आगे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कौन कौन इस सिचुएशन के अंदर रहा है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें मिलते हैं केस स्टडी करने के बाद. इट कैन बी डन ऑन एनी एज ग्रुप. सॉरी, इट्स द वर्ड इज़ मिसिंग. ओके, अभी हम किसी बच्चे पे भी कर सकते हैं. बच्चा ये नहीं कि पैदा हुआ तो हम उसकी केस स्टडी कर रहे हैं, नहीं. अगर हम बोले कि 5 इयर्स का बच्चा है जो बहुत डरता है, अब वो क्यों डरता है, ऐसा कुछ पहले हुआ है क्या उसके साथ, स्कूल में, घर में, कहीं भी, तो ये सारे जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब हम ये सब कुछ डेटा ढूंढेंगे डेप्थ में, दैट इज़ व्हाट इज़ केस स्टडी. अब जब हम इतना टाइम इन सब चीज़ों पे लगा रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, सो वेरी ऑब्वियस इट्स very time consuming and requires lots of patience. Last point, it is based on the data generated by different methods like observation, test and questionnaire. Very simple, जैसा मैंने ऊपर बताया कि जब हम देख रहे हैं कि वो बच्चा क्यों डरता है तो हमने उसके पेरेंट्स से बात करी, इंटरव्यू लिया,
हमने क्लास में क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा करा ताकि हमें थोड़ी सी कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमने उस बच्चे को ऑब्जर्व किया, वो कैसे घूम रहा है, कैसे बात कर रहा है, किसी के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे हैं। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, किसी को बहुत क्लोज ऑब्जर्व करना, उसकी हर एक चीज़ को देखना। अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग क्लोजली एनी पर्सन, इवेंट और एक्टिविटी। क्लियर? एन इफेक्टिव वे मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग बिहेवियर। सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक एक पर्सन क्या कर रहा है उसको आराम आराम से हम देख रहे हैं, अपने पास नोट कर रहे हैं, और बाद में अगर चाहे तो उसको हम एक डायरी में लिख सकते हैं कि उसके क्या क्या उसका बिहेवियर था, उसको हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग। इट कैन बी नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल और पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट। नेचुरलिस्टिक क्या होती है, हमने 11th में भी पढ़ी है, जब हम किसी जगह पे बिना छेड़छाड़ करे, कुछ भी नहीं कर रहे, जाके हम उस जगह पे सीधा ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि नर्सरी स्कूल में बच्चे कैसे खेलते हैं, तो हमने क्या किया, क्लास में देखने बैठ गए या कुछ भी हमने नेचुरली कुछ करा, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं करा। और कंट्रोल्ड हमने क्या करा, जो भी हम ऑब्जर्वेशन चेक कर रहे हैं वो हम एक रूम में बैठ के कंट्रोल्ड चीज़ें बना रहे हैं, मतलब वैसी फैक्टर्स बना रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं ताकि वो चीज़ हम किसी की ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। वेरी सिंपल। पार्टिसिपेंट मीन्स हमें देखना है कि कोई एक फुटबॉल प्लेयर है तो वो कैसे खेल रहा है, तो हमने क्या किया, हम भी प्लेयर बन गए, उसके साथ खेलने लग गए। ठीक है, ये सब चीज़ें तो हमने 11th में भी कवर करी थी, और फिर हमने ऑब्जर्व किया वो कैसे खेलता है। और नॉन पार्टिसिपेंट, मैच चल रहा है, हम साइड में आके बैठ गए एज अ व्यूअर, और हम मस्ती में अपना मैच भी देख रहे हैं और साथ में जो चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी टिपिकली हम वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, बट एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड, इसका भी डिसएडवांटेज कुछ ना कुछ होगा। सो इट सेज दैट रिपोर्ट्स में सफ़र फ्रॉम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब जो वो चीज़ सामने वाला पर्सन कर रहा है, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहा है, और उसके बिहेवियर को हम अपनी तरफ से कुछ और समझ के अपनी डायरी में इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन या ऑब्जर्वर बायस हो सकता है कि वो सामने वाला क्या कर रहा है और उसे हम कैसे देख रहे हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ रिपोर्ट। वर्ड खुद ही बता रहे क्या है, सेल्फ की रिपोर्ट। नाउ इट प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट हर सेल्फ, हिमसेल्फ, अबाउट ओपिनियन, बिलीव्स एक्सेट्रा। जब कोई भी पर्सन, कोई भी क्लाइंट या कोई भी इंसान जब अपने बारे में खुद बताता है तो उसे हम सेल्फ रिपोर्ट बोलते हैं। इट्स मोर डायरेक्ट वे टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन, इट इज़ मोर ऑब्जेक्टिव, and there are some tests which are based upon self-report methods like 16PF test, MMPI, NeoPIR, etc. If you like my video, then please subscribe it, like it, and share it for more videos. Thank you.